Hello friend, welcome to another tutorial. Today we will discuss about the DNA replication. As we know that in 1953, Watson and Crick proposed the model for the structure of DNA, in which they showed that the purine is equal to pyrimidine. That is, the adenine is always equal to thymine and guanine is equal to cytosine. And it is also proposed by Chargaff, which is also known as Chargaff Chargaff's rule, in which he says that the purine is equal to pyrimidine in a double-stranded DNA. And in Watson and Crick model shows that the two strand of a DNA, two strand of a DNA are run anti-parallel, run anti-parallel, and the two strands are bind together with a hydrogen bond. And the in a single stranded DNA or in a single strand, the one nucleotide is attached to another nucleotide with the help of a phosphodiester bond. Clear? So A is equal to T and G is equal to C. Such pairing is found in the DNA. And using this base structure, using this base structure of DNA, later on, in 1958, two scientists, Melson and Stahl, performed their experiment for the DNA replication. And they proposed a model for DNA replication, which is also known as Melson and Stahl experiment, which is a very popular model of the DNA replication. And they prove it with the help of using the isotopes of nitrogen. They prove it by using the isotope of nitrogen, in which they use the ammonium chloride. They use ammonium chloride in their artificial nutrient media on which they culture the E. coli bacteria. E. coli bacteria for their three generations. For the three generation and finally conclude that the most of DNA replication is semi-conservative. However, there is two different other models are mode of replication is also found. One is known as the conservative and another one is known as the dispersive. So there is three models: conservative, dispersive, and semi-conservative. Three mode of DNA replication is found. Semi-conservative. Let us discuss one by one with the help of a diagram. Here we use first of all conservative model. This is the DNA. We can see here with the help of a dark and lights mode of DNA molecule. Here it is the dark, or we can say it is, um, for example, N15. This is the DNA. And when this DNA is replicated in its first round, so it shows that the when this DNA is separated like this, and the new DNA strand is produced by using this. This is 5.3 prime. This is the
also 3 prime and 5 prime. So this is 5 prime, this is 3 prime, and this is 5 prime, and this is 3 prime. So the color which is shown here is the green. So two DNA strands are produced here, and that is daughter. So later on, these two strands are separated like this. Two daughters get separated independently, and the parents get separated independently like this. So in we can say that in the daughter, the parent DNA remain get separated from the daughter. The daughter have totally new DNA, and parent have their own DNA which is present already in them. So this mode of replication is known as the कंजर्वेटिव. जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने मान लो ये लिया डीएनए, पेरेंटल डीएनए ये था ब्लू कलर में, जब ये सेपरेट हुआ तो दोनों डीएनए स्टैंड अलग हो गए, उन पे नया डीएनए स्टैंड बना जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। और जब ये डीएनए अलग अलग सेलों में गए तो एक में टोटली जो नया डीएनए बना है वो गया, और एक में टोटली जो पेरेंटल डीएनए था वो गया। तो पेरेंटल डीएनए एक पेरेंटल सेल में कंप्लीटली गया, तो दैट इज नोन एज द कंजर्वेटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव. दिस इज द, मान लो it is also an N15 nitrogenous. When the DNA replication is started like this, कि ये डीएनए है हमारे पास ब्लू कलर में, ये सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो इस पे नया डीएनए स्टैंड बनेगा वो डीएनए स्टैंड यहाँ बन रहा है। एक we can use another color. ये यहाँ बन रहा है ऐसे। तो जब ये डीएनए के दोनों स्टैंड अलग अलग सेल में जाएंगे तो एक सेल तो में तो ये चला जाएगा और एक सेल में ये चला जाएगा, which shows that the hybrid of one in this one is new DNA and one is old DNA. That is the old and that is the new. तो यहाँ पर एक पुराना स्टैंड और एक नया स्टैंड दो अलग सेल्स में जाता है, तो such mode of DNA replication is known as semi conservative as we saw here. Similarly, if we saw there another model, मान लो दिस इज आल्सो एन N15, तो ये डीएनए का स्टैंड हो गया हमारा। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, देखो जैसे कि डीएनए के दो स्टैंड खुल गए हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी यहाँ पर शुरू हुई जिसमें डॉटर डीएनए बनना शुरू हुआ, तो जो डॉटर डीएनए बनना शुरू हुआ वो कुछ इस तरीके से बना कि उसका एक हिस्सा भी दोनों स्टैंड रिपीटेडली बन रहे हैं। दोनों स्टैंड कैसे बन रहे हैं, आधा जब डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनए को बना रहा है तो वो इस तरीके से इसको बना रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड उधर की तरफ कुछ डीएनए का पार्ट, कुछ डीएनए का पार्ट उधर की तरफ बनाया जा रहा है। तो ऐसे कि यानी कि ना तो कम्प्लीटली डीएनए इसमें गया है और ना ही कम्प्लीटली डीएनए उसमें गया है, तो दोनों डीएनए के स्टैंड आपस में मिक्स हो गए हैं, एंड दैट मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज द डिस्पर्सिव मॉडल, यानी कि फैला हुआ डीएनए जो दोनों स्ट्रैंड्स में चला गया। तो here is the, according to 12th, it is most important is the semi-conservative model of DNA replication. However, they are also very useful in higher classes. So we must know about the what happened here. Let us discuss the semi-conservative model of DNA replication, which is proposed by Melson and Stahl. In this way, what happened? They take the culture media, they prepare it, which is use the N15 nitrogen base, and they use ammonium chloride, in which ammonium is N15, as a source of
नाइट्रोजन। तो उन्होंने नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में किसको लिया है? अमोनियम क्लोराइड को लिया है। और जो N है वो कैसी है? N15 है, यानी कि भारी है नाइट्रोजन का। तो उन्होंने जब इस न्यूट्रेंट मीडिया पे ई कोलाई बैक्टीरिया को उगाया, जर्मिनेट ग्रो किया, तो ग्रो करने पर जहां जहां भी बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन का यूज किया, उन सभी जगहों पर उन्होंने N15 नाइट्रोजन यूज की बैक्टीरिया ने। तो दे यूज डीएनए रेप्लिकेशन। तो उन्होंने जब N15 मीडियम पे बैक्टीरिया को उगाया, तो सभी बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो N15 था। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि ये N15 है या N14 है? तो इसको जानने के लिए उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि वो टेक्निक जो मॉलिक्यूल्स को उनके डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करती हो, यानी कि अलग कर देती है। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, N14 और N15 नाइट्रोजन के, उनको भार के अनुसार, उनके वेट के अनुसार अलग कर देगी। तो जब उन्होंने पहली बार ई कोलाई को N15 न्यूट्रेंट मीडिया पे उगाया, तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए है उसका, उसमें सारा जो डीएनए है वो N15 रेंज में आ रहा है। तो जब उन्होंने फर्स्ट राउंड लिया, तो उन्होंने अब न्यूट्रेंट मीडिया में क्या मिला दिया? N14 मिला दिया से उन्होंने। तो उनका जो डीएनए है पहले राउंड का इकोलाई बैक्टीरिया का वो N15 है, अब उन्होंने N14 उसमें मिला दिया तो न्यूट्रेंट मीडिया में। तो तब उन्होंने देखा कि जो डीएनए के दो स्टैंड बने वो इस तरीके से बने कि एक नया स्टैंड और एक पुराना स्टैंड। और जब उन्होंने उसका सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो उन्होंने पाया कि जो उनका डीएनए स्टैंड आ रहा था वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर, जब उन्होंने देखा कि ये मान लो ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब है, और इसमें इन्होंने लगा रखा था कि ये यहाँ पर इस रेंज पे 15 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, तो उनका जो वेट आ रहा था वो N14 और N15 के बीच में आ रहा था। तो इससे पता चलता है कि जो वेट है वो मीडियम है, ठीक है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। फिर उन्होंने एक और राउंड लिया, तो अगले राउंड में उन्होंने देखा कि जो डीएनए का जो, जब ये जो डीएनए के दो स्टैंड बने हैं, मान लो एक ये और एक ये, और इस पर ये बना था और इस पर ये बना था, है ना? तो अब ये डीएनए के ये स्टैंड भी अलग हो जाएंगे, डीएनए के ये स्टैंड भी अलग हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 4 स्टैंड हो गए ना। तो अब जो नया डीएनए स्टैंड बनेगा वो इस तरीके से बन रहा है, मान लो कि ये N15 बना था, ये 14 है, ब्लू वाला 14 है और ये 15 है। तो जब उन्होंने न्यूट्रेंट मीडिया में N14 मिलाया था दूसरे राउंड के लिए भी, वो उसको लेके गए, तो उन्होंने देखा कि इस पर भी जो N15 है ये, और ये N15 है और ये 14 है ना? तो इन सभी पर अब जो है, जब 14 मीडिया में मिला हुआ है, तो ये 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, मतलब 14 14 के आगे। तो देखो उनके जब राउंड मिला जब सेकंड, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये एक हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड है, यानी कि एन यहाँ आ रहा है इस रेंज में, और एक कहाँ पे आ रहा है? N14 पे आ रहा है। एक बैंड उन्हें कहाँ पे मिल रहा है? N14 पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जब तीसरी जनरेशन ली, तो उन्होंने देखा कि उन्हें फिर से यही मिल रहा है कि ज़्यादातर जो उनके N14 पे आ रहे हैं। तो इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि डीएनए के जो स्टैंड हैं, तो एक स्टैंड पुराना, एक स्टैंड नया, एक स्टैंड पुराना और एक स्टैंड नया हर बार एड ऑन होता जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए replications mode, डीएनए replications mode।
इस तरीके से बनते जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देखने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगर जो कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें। आई विल मस्ट आंसर वन बाय वन। थैंक यू सो मच।